Dear friends, greetings to every one of you in the name of Lord and Savior Jesus Christ. प्रिय मित्रों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ यीशु मसीह के अद्भुत नाम में। So every day God wants to do new things in our lives. और हर रोज परमेश्वर नई चीजें हमारे जीवन में करना चाहता He है। wants to give us a new blessing. और हर रोज वो हमें नई आशीषें देना चाहता Several है। times we are satisfied with the old things. और कई बार हम पुरानी ही चीजों से संतुष्ट हो जाते हैं। That's why we are not receiving any new blessing in our और life. इसी करके हमें नई आशीषें अपने जीवन में नहीं Today मिल just पाती। believe I am going to enjoy the new blessings in my life. और आज आपको यकीन करना है कि आप उन नई आशीषों को अपने जीवन में ले पाएंगे और उन्हें मना पाएंगे। All the old things are passed away. सारी पुरानी बातें बीत गई हैं। The one who is seated on the throne is saying, I am going to do new things in your life. वो जो सिंहासन पे बैठा है वो कहता है कि तुम्हारे जीवनों में मैं नई चीजें करने जा रहा हूँ। Jesus Christ is going to perform a new miracles in your life. और यीशु मसीह आपके जीवन में नए चमत्कारों को करने जा रहा Our है। God is a God of miracles. और परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो चमत्कार करता Our है। God is a God who can do wondrous things in your life. और वो ऐसा परमेश्वर है कि वो अद्भुत चीजें हमारे जीवनों में करता So है। today just to open your heart for the new blessings in your life. और आज आप अपने दिल को खोल दीजिए उस नई आशीष को लेने के So लिए। today the Lord is going to perform the miracles in your life. और आज परमेश्वर आपके जीवन में वो चमत्कारों को करेगा। So the miracles will come from the word of God only. जो चमत्कार होते हैं वो परमेश्वर के वचन से ही So आते that's हैं। why you have to give importance only to the word of और God. इसलिए आपको खास तौर से परमेश्वर के वचन को अहमियत देनी है। As much as you can able to read, you have to read the Bible. जितना ज्यादा हो सके आप बाइबल को पढ़ें। If you are not able to read the Bible, you can hear through the mobile audio Bible. अगर आप पढ़ना नहीं जानते तो मोबाइल ऑडियो जो ऑडियो होता है उसके जरिए आप सुनते रहें Because उसे। word of God should keep on fill your mind and heart. और जब वचन को आप सुनते रहते हैं तो आपके दिल दिमाग को वो भर देता In है। this world, everywhere there is a disturbance. इस संसार में हर तरफ हम देखते हैं मुश्किल है। Everywhere there is a great dangerous things are surrounding us. और जहाँ पे भी हम देखते हैं हमें वो हानि की ही चीजों से हम घिरे हैं। So without word of God, we can't survive. परमेश्वर के वचन के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। Several times without our knowledge, lots of disturbance, the sorrows and worries are going inside our heart and mind. और कई बार बिना हमारे जाने ही बहुत सारी परेशानियां चिंताएं हमारे दिल दिमाग में चलती रहती So हैं। that is the work of the evil spirit. और ये शैतान की उन दुष्ट आत्माओं के काम The है। evil spirit will not keep you in joy, peace, happiness. क्योंकि वो दुष्ट आत्मा नहीं चाहती कि आप शांति में बने रहें और अपने जीवन को आनंद से मनाएं। So if you allow the word of God inside your heart and mind, अगर आप परमेश्वर के वचन को अपने दिल और दिमाग में आने देंगे the word of God will remove all the unwanted disturbance spirit inside your heart. और उसी वचन के द्वारा जितनी भी बेकार की बातें हैं वो बेकार की जो आत्मा है आपके दिल दिमाग से निकल जाएंगी। All the evil spirit will leave और सारी दुष्ट आत्माएं आपको छोड़ के जाएंगी। and you will open up for the word of और God. आपका दिल दिमाग खुल जाएगा उसके वचन के लिए। Now if any of you having the disturbance inside your heart and mind, अगर इस समय में भी किसी के दिल और दिमाग में कोई भी परेशानी the है Holy Spirit is rebuking all the evil spirits should leave now in Jesus' और name. पवित्र आत्मा उन सारी दुष्ट आत्माओं को डांटती है कि निकल जाए यीशु के नाम से। Every disturbing spirit should get out in Jesus' name. वो सारी दुष्ट आत्माएं जो आपको डिस्टर्ब करती है निकल जाएं यीशु के नाम से। The Lord is setting you free now. परमेश्वर आपको आजादी दे रहा है You are going to receive your miracle. और आप अपने चमत्कार को लेने जा रहे You are going to हैं receive a new blessing today. और आप नई आशीषों को लेने जा रहे हैं। His grace and mercies are new every day. उसका रहम और उसकी महिमा हर दिन नई होती है। So today He is going to do new blessings in your और life. आज आपको वो एक नई आशीष देने जा रहा है। So turn your Bible, the book of John, the Gospel, chapter 2, verse 1 to 11. अपनी बाइबल को खोले यूहन्ना जो नए नियम में है उसका दूसरा अध्याय Verse 1 to 11. पहले से 11 तक। So you open your Bible आप अपनी बाइबल खोल लीजिए, just to follow the word of God. परमेश्वर के वचन को पढ़ते चलें। So what is written here? यहाँ पे क्या लिखा है? This is the very first miracle of Jesus Christ. ये वो ऐसा चमत्कार है जो यीशु ने सबसे पहले किया था। The first miracle of Jesus ये Christ. यीशु का पहला चमत्कार है The full of joy happened due to that miracle. और उस चमत्कार के द्वारा वो जिस जगह पे हुआ था पूरा आनंद भर गया था। They are lack in the important the material of the wedding food called the wedding wine.
वहाँ पे एक शादी हो रही थी जो उस शादी के अंदर एक बहुत ही एक खास मतलब जो ड्रिंक थी जो सर्व हो रही थी, दाख रस, वो खत्म हो गया था। So the Lord Jesus also invited into this wedding. और यीशु मसीह को भी इस शादी में बुलाया गया था। So the miracles happened. The entire wedding there became a joy and happiness. और ऐसा चमत्कार हुआ कि उस पूरी शादी में आनंद भर गया। The wedding started with a great joy. जो शादी शुरुआत हुई थी खुशी के साथ हुई थी। Suddenly some disturbance happened. और उसके चलते चलते बीच में कुछ मुश्किल आई। Because as per the Jewish culture, the wine used to be served as the symbol of their pride. और जो यहूदा का जो जूइश कल्चर है, जो वो उनकी जो परंपरा है, उसमें शादी के दौरान में जो दाखरस होता है वो बांटा जाता है लोगों को पीने के लिए, एक मतलब कि हाँ हम ऐसा कर सकते हैं। So some places the food is the very important. और कई जगहों पे खाने को बहुत अहमियत दी जाती है शादियों में। So but as per the time of the Jewish culture, the wedding wine is the important. पर उस समय में, यीशु के समय में, शादी के दौरान में जो दाखरस जो शादियों में दिया जाता था उसकी अहमियत। So all of us we know the water became the wine. और हम सबको इस कहानी के बारे में पता है, चमत्कार के बारे में पता है कि वो पानी दाखरस बन गया था। So how it is happened? वो कैसे हो गया था? So the Holy Spirit is going to speak to you through this word of और God. आज पवित्र आत्मा इस वचन के द्वारा आपसे बात करेगा। All of us we know this miracle. हम सबको इस चमत्कार के बारे में पता But है। lots of spiritual secrets, spiritual understandings are inside this word of पर God. इस वचन के अंदर बहुत सारी गहरे भेद हैं, वो आत्मा के गहरे भेद हैं। So God is going to speak to you. और इन भेदों के द्वारा वो आपसे बात करेगा। The verse 1 is starting like this. पहला वचन इस तरह से शुरू होता है। 3 days later, 3 दिन बाद they went to the wedding. और वो शादी में गए। Who are they? कौन थे वो लोग? Jesus यीशु and his mother, और उनकी माता all his disciples. और उनके 12 चेले। So what is the meaning of the 3 days? क्या मतलब है 3 दिनों का? So what happened after the 3 days? और क्या हुआ उन 3 दिनों के बाद में? Jesus Christ resurrected from the dead after the 3 days. जैसे कि आपको पता है यीशु मसीह जी उठा तीसरे दिन मुर्दों में से। So the wedding is started after the 3rd day. और इसमें लिखा है कि जो शादी की शुरुआत हुई 3 दिनों के बाद हुई। So this is the resurrection power is the resurrection power of Jesus Christ want to come in your life today. और ये परमेश्वर की वो जी उठने की सामर्थ आज आपके जीवनों में आएगी। So the 3rd day, after the 3rd day, the wedding started. और तीसरे दिन के बाद वो शादी की शुरुआत होती So है। today in your life you may gone through lots of problem, हो सकता है कि आज अपने जीवन में आप बहुत सारी परेशानियों से होके गए, lots of disturbance. बहुत सारी डिस्टर्ब करने की बातें। Today is the 3rd day in your life. और आज वो तीसरा दिन है आपके The जीवन में। God who raised from the dead, Jesus Christ is alive to perform the miracle in your life. जिस परमेश्वर ने यीशु को मुर्दों से जी उठाया, वही परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करने जा रहा है। So believe the resurrection power of Jesus Christ in your life right now. परमेश्वर की उस जी उठने की सामर्थ को, यीशु मसीह की उस सामर्थ को अपने जीवनों में मांगे इस समय Today में। the mighty power of the Holy Spirit is going to be come upon your life. और आज पवित्र आत्मा की वो सामर्थ आप लोगों के जीवन में आएगी। The same God who did mighty miracles after the 3 days, he is going to help you. वही परमेश्वर जिसने तीसरे दिन के बाद में वो अद्भुत चमत्कारों को किया, आपकी मदद करने जा रहा है। Jesus Christ is alive today. यीशु मसीह जीवित है आज। You have to confess Jesus is living in me. आपको अपने मुंह से बोलना है कि यीशु मसीह मेरे अंदर रहता है। Today I am going to enjoy my miracle. और आज मैं उस अद्भुत चमत्कार को ले लूंगा। Jesus is alive. यीशु जीवित है। He is with वो me. मेरे साथ में है। I am going to receive the miracle in my और life. मैं अपने जीवन में उन चमत्कारों को लूंगा आज। Today is the day of your miracle. और आज आपके उस चमत्कार का दिन है। If you follow after that, और आप उसको, इस कहानी को जब हम आगे पढ़ते हैं, Jesus invited that wedding. यीशु उस शादी में बुलाए गए थे। Jesus invited. यीशु को बुलाया गया था। So without inviting Jesus, यीशु को बिना बुलाए you can't receive your miracle. आप अपने चमत्कार को नहीं ले सकते। You may try your own many things. आप अपनी सामर्थ्य से बहुत कुछ कर सकते हैं। Today invite Jesus. और आप यीशु को अपने जीवन में बुला लीजिए। Invite Jesus. उनको बोले, न्योता दीजिए कि आप मेरी लाइफ में आ If जाएं। Jesus come inside your heart, जब यीशु आपके दिल में आ जाएगा, the
presence of the Lord will fill us. तो वो परमेश्वर की जो सामर्थ है उसकी मौजूदगी से आप भर In जाएंगे। every area of our life, we will feel the presence of the Lord. हमारे जीवन के हर हिस्से में उसकी मौजूदगी हमारे साथ होगी। So in that wedding, और उस शादी में the bride and bridegrooms are there. और जो शादी का जोड़ा था वो वहाँ पे था Everybody is enjoying. और हर कोई खुशी मना रहा था Something lack. और कुछ कम हो गया। Who is that? वो क्या था? That is Jesus. वो यीशु था। They invited Jesus personally. उन्होंने यीशु को तो बुलाया था व्यक्तिगत तौर से। They know without the Jesus Christ the marriage can't be complete. उन्हें पता था कि यीशु के बिना वो शादी पूरी नहीं होनी थी। Because of Jesus only the perfect blessing can come. क्योंकि यीशु के होने से ही वो आशीषें जो पूरी तरह से है वो आपके जीवन में आएंगी। James 1:17. याकूब 1:17 The perfect blessing used to come from the Lord who made heaven and earth. जो एकदम पूरी आशीषें हैं वो परमेश्वर की ओर से आती है जिसने उस स्वर्ग को और धरती को बनाया So है। today invite Jesus. और आज आप यीशु को न्योता दे दे अपने जीवन में आने के If he लिए। come, everything, all the incomplete thing will be perfect in your life. जो भी अधूरी और बेकार की चीजें हैं जो आपके जीवन में अधूरी पड़ी है वो पूरी हो जाएंगी। They invited Jesus. क्योंकि उन्होंने यीशु को बुलाया Are you था। going through problem? अगर आप परेशानी से जा रहे There is हैं, no joy, peace in your क्या life. आपके जीवन में शांति नहीं है, आनंद नहीं है, You are not enjoying your marriage life. क्या आप अपने शादी के जीवन में खुश नहीं हैं, Invite Jesus today. यीशु को पुकार लीजिए। He will surely come and bless वो you. जरूर आ जाएगा और आपको आशीष देगा। If Jesus come, your house will be filled with the perfect blessings of और God. जब यीशु मसीह आ जाएंगे जो आपका घर है वो उसकी पूरी आशीषों से भर जाएगा। So as I told you, जैसा मैंने आपको बताया, the wine is the symbol of the pride of the Jewish marriage. जो जूइश मैरिज होती थी, हिब्रू लोगों की जो शादियां होती थी, वाइन एक तरीके का एक मतलब ऊंचे ओहदे दिखाने वाला एक सिंबल होता था। So everybody used to think that kind of the wine used to be served in a best taste. और वो सब ये बात को जानते थे कि जो भी वाइन वहाँ पे सर्व करी जाएगी, जितने जो गेस्ट आएंगे उनको दी जाएगी, वो उसका टेस्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। So such a way the wedding used to be held. और इस तरह से शादियां वहाँ पे होती थी। So without Jesus they can't enjoy their wedding blessing. और बिना यीशु मसीह के उस न्योते के वो अपनी जीवन में उस शादी की आशीषों को नहीं ले सकते थे। That's why they invited Jesus. और इसी करके उन्होंने यीशु को उसमें न्योता दिया था। So in the beginning the wine was very tasty. The first people, those who are enjoyed the wine, they are very proud. They are appreciated, and the wedding bride and wedding bridegroom. और जब शुरुआत में उस दाखरस को बांटा गया उन सारे लोगों के अंदर, उन्होंने बहुत उसकी तारीफ करी। वहाँ पे जो लोग जो जोड़ा था उनकी भी तारीफ करी कि देखो इन्होंने कितना अच्छा हमें दाखरस दिया है। So all the family, they are very proud without Jesus. और वो उनको बहुत मतलब घमंड हुआ, अगर यीशु वहाँ पे नहीं होते तो क्या होता। So they are very much proud because of the wine taste. और वो इस बात से भी घमंड से बढ़ गए थे कि देखो कितना अच्छा दाखरस हमने दिया है। The Bible says suddenly there is a lack in the wine. और बाइबल कहती है कि अचानक ही जो दाखरस पे वो घमंड कर रहे थे उसमें कमी हो जाती है। In our life, the great destructive character is the pride. और हमारे जीवन में हमें यीशु के रास्ते से अलग करने के लिए एक और भी चीज है, वो है घमंड। So the wedding, everybody is proud because of the very tasty wine. हर कोई बहुत घमंड कर रहा था कि देखो कितना अच्छा दाखरस हमने लोगों को बुलाया पिलाया The है। pride continue just few minutes only. पर वो जो घमंड था वो कुछ ही देर उनका रहा Suddenly there is a lack. और अचानक वो खत्म हो गया। James 4:6 the Bible says, याकूब 4:6 बाइबल कहती है, the God, he used to resist the proud, परमेश्वर वो है जो घमंड को रोकता है, but he will give the humble the grace. पर जो दीन है परमेश्वर उन्हें ऊंचे से उठाता है। So God used to humble the proud. क्योंकि परमेश्वर जो घमंड करता है उन्हें दीन बनाता है। God used to the humble people give the grace. और जो दीन है और मतलब पहले से ही जो दीन है उन पे अपना अनुग्रह दिखाता है। In the wine proudly served that come to down. और जो बड़े घमंड के साथ उस दाखरस को बांटा जा रहा था, अचानक उसकी कमी हो गई थी। So then they are totally dependent upon Jesus. और फिर क्या हुआ, वो पूरी तरह से यीशु पे निर्भर हो गए थे उस समय में।
So in the Bible it very clearly says, if you come down John chapter 2 verse 6, अगर हम यूहन्ना 2:6 में देखते हैं, यहाँ पे साफ साफ लिखा है, so there were 6 stone water jar. और उन्होंने क्या किया, वहाँ पे 6 पत्थर के जार थे, मतलब बड़े बड़े जैसे मटके जैसे थे, But that jar was empty. पर वो जो मटके थे वो खाली थे. 6 numbers of jar. 6 थे, वो गिनती में 6 थे. So as per the worldly standard, the 6 is the perfect for the Jewish calculation. और जो जूइश जिस हिसाब से वो गिनती करते हैं, 6 नंबर उनके हिसाब से बिल्कुल ही अच्छा नंबर है. As per their wedding thing, the 6 number will be their blessed number. और शादियों में वो 6 नंबर बहुत आशीष का नंबर माना जाता था. But the 6 jar was empty. पर क्या हुआ कि वो खाली मटके थे तो 6 पर वो खाली थे. The 7th person enter. और फिर वो 7वां मनुष्य आता है. So that is Jesus. और वो यीशु है. Full of the anointing. पूरे ही अभिषेक से भरा हुआ. Full of the Holy Spirit. पूरा ही पवित्र आत्मा से भरा हुआ. The 6 jars are empty. और 6 जो मटके थे वो खाली थे. The 7th person is the rivers of the living water, overflow anointing. और जो वो 7वां मनुष्य था वो उस पानी से भरा हुआ था, क्योंकि उसी से वो पानी के झरने और नदियां निकलती थी. John 3:34. यूहन्ना 3 उसका 34. Jesus had the anointing without measure, the overflow anointing. यीशु मसीह के पास इतना अभिषेक था कि उसकी गिनती नहीं कर सकते थे, कि वो बहता रहता था उनसे. The worldly blessings are empty with the 6 jar. जो संसारिक जो आशीषें थी वो खाली थी, क्योंकि वो मटके खाली थे. The 7th person full of the anointing is going nearby that jar. जो 7वां मनुष्य था जो पूरा ही अभिषेक से भरा हुआ था, वो खाली मटकों के पास जाता है. When the fullness come, और जब वो बहुतायत आता है, the emptiness will go away. जो खालीपन है वो चला जाता When है. the fullness of the anointing come, जब वो अभिषेक पूरी तरह से आप पे उतर जाता है, the lackness, the emptiness will go away. जो आपके अंदर जो कमी है, जो खालीपन है, वो अपने आप चला जाता है. So verse 7 says, और इसमें 7 कहता है, John 2:7, यूहन्ना 2:7, Jesus told the servant to fill the 6 jar with the water until the top full. और यीशु ने अपने उन लोगों को बोला कि जो ये खाली मटके हैं, पूरा ऊपर तक, मटके के बिल्कुल ऊपर के सिरे तक भर दो. Once the anointing filled the 6 jar, और ऐसा हुआ कि जिस अभिषेक से वो जो छठा मटका था जब भरा गया, all of us we know the water became the sweet wine. और हम सब जानते हैं कि वो पानी दाखरस में बदल गया था. How the miracles happen? कैसे चमत्कार होते हैं. The 6 jar was empty. क्योंकि 6 मटके खाली थे. The 7th person came, the anointed Jesus, Messiah. और 7वां मनुष्य आता है जो अभिषिक्त है, जो मसाया है. The 6 emptiness will filled with the blessings of God. और 6 खाली मटके भर गए परमेश्वर की आशीष से और उसकी बरकत से. So today in your life the Lord is going to perform the miracle. और आज आपके जीवनों में परमेश्वर उन चमत्कारों को करेगा. So you may have all your efforts you tried to receive the blessings by your own strength. हो सकता है कि आपने अपनी पूरी सामर्थ लगा दी उन आशीषों को लेने के लिए. So it may be like the 6 empty jar in your life. हो सकता है कि वो वैसे ही 6 खाली मटकों के जैसे हो. You are trying to fill that jar. और आप कोशिश तो कर रहे हैं उस खाली मटके को भरने की. But it is not able to filling. पर हो नहीं पा रहा है. If Jesus, the anointed one, is come as a 7th person, अगर यीशु जो अभिषिक्त है वो आ जाएगा, क्योंकि वो उसके लिए ठहराया गया है, so he will fill your emptiness. वो आपके खालीपन को भर देगा. The anointing will come and fill you. वो अभिषेक आ जाएगा और आप लोगों को भर देगा. So this is the miracle of Jesus Christ, the first miracle. और ये यीशु का वो पहला चमत्कार है. So don't keep your jar as empty. अपनी जो आनंद है उसे खाली ना रहने देना. So Bible very clearly says in the wedding there is a empty jar, 6 jar. बाइबल साफ साफ बताती है कि उस शादी के अंदर 6 खाली मटके थे. So in our life also you should not
have the emptiness inside your heart. और ऐसे ही आपकी जिंदगी में जब आप मसीह के अंदर है, आपके अंदर खालीपन नहीं होना चाहिए। Bible very clearly says बाइबल साफ साफ कहती है why there is a problem in our life. क्यों हमारे जीवन में परेशानियां आती हैं। Jesus himself explained this very nicely. यीशु ने खुद ही बताया है बहुत अच्छे से। So how the disturbance are coming in our life और जैसे वो परेशान करने की मुश्किलें हमारे जीवन में आती हैं, when we are don't allowing Jesus. वो तभी आती हैं क्योंकि हम जब यीशु को नहीं आने देते। We are thinking we are a Christian. हमें लगता है कि हम मसीही हैं। We are thinking I am reading the Bible. हमें लगता है कि मैं बाइबल तो पढ़ रहा हूँ। But really if you are not allow Jesus inside your heart, पर अगर आपने सच में यीशु को अपने जीवन में नहीं आने दिया है, your life will be like the empty six jar. और आपका जीवन उन खाली मटकों के जैसा ही होगा फिर। So if you allow Jesus, अगर आप यीशु को आने देते हैं, so Jesus will come and fill you. वो आ जाएगा और आपको भर देगा। Why there is a problem in our life? क्यों हमारे जीवनों में मुश्किलें हैं? Some area we are having the emptiness. क्योंकि कोई ना कोई हिस्सा अभी भी खाली है। The Bible very clearly says बाइबल साफ साफ कहती है when there is a home neat and clean empty, और जब कोई घर होगा बिल्कुल साफ सुथरा पर खाली, the evil spirit used to come. जो दुष्ट आत्माएं हैं वो आ जाती हैं। It is written. ये लिखा है। The evil spirit will not come with a threatening like a face. वो आपको ऐसे डरा धमका के बता के नहीं आएगी कि मैं आ रही हूँ। The evil spirit will enter through the small anger first. वो आराम से जब आपके एक छोटे से गुस्से से ही आपके घर में आ जाएगी। Then the things will be started. और फिर वो उसकी शुरुआत हो जाएगी। The small pride. और वो छोटा सा घमंड। The small ego. और वो छोटा सा अपने ऊपर बड़ा समझना। So that will make a great problem. और वो धीरे धीरे करके बड़ी मुश्किलों को ले So आती in है। that wedding at Cana, they are proud with their number one wine. और जब हम इस काना की उस शादी को देखते हैं, उन्हें बड़ा घमंड हुआ था कि देखो हमने कितना अच्छा दाग रस दिया है। Jesus was not given importance. उस समय उन्होंने यीशु को कोई महत्व नहीं दिया था क्योंकि वो वहाँ पे था भी। Automatically they started come down. और अचानक ही अपने आप ही वो नीचे गिर गए। The wine prepared by the people was totally come to end. जिन लोगों ने उस दाखरस को तैयार किया था वो एकदम खत्म हो गया था। That time Jesus entered. और फिर यीशु आता है। The 6 empty jar filled with the grace of the Lord. और वो 6 खाली मटके परमेश्वर के अनुग्रह के कारण भर जाते हैं। Don't allow pride in your life at any time. अपने जीवन में कभी भी घमंड को ना आने दें। The God is against the pride character. परमेश्वर जो घमंड करते हैं ऐसे लोगों के सामने खड़ा हो जाता है। Humble yourself. अपने आप को दीन कर लीजिए। The entire wedding they are humbled themselves to receive from Jesus. उस सारी शादी में हम देखते हैं कि अपने आप को उन्होंने दीन कर लिया था यीशु के आगे की मदद कर दे। Then Jesus started work in their life. और तभी यीशु ने आके उनकी मदद करी थी। The water became a sweet wine. और वो पानी एक मीठे दाखरस में बदल गया So था। the another way, और इसी तरह दूसरी तरह से the water jars they are made with a strong stone. और जो ये पानी के जो वो मटके थे उन्हें वो बहुत मजबूत पत्थर से बनाए गए थे। So the strong stones, the rock of ages, the rock of ages, the rock of ages is Jesus Christ. और वो इतना मजबूत पत्थर है जिसे हम बोलते हैं कि वो वही पत्थर है जिसे हम यीशु मसीह कहते हैं। So Jesus Christ is the rock of ages. जो हमें पता है यीशु वो ऐसा पत्थर है जो सदा सदा के लिए ठहराया गया Bible है। very clearly says the jars was made by the very strong stones. बाइबल साफ साफ कहती है कि जो वो मटके थे वो मिट्टी से नहीं पत्थर से बनाए हुए थे। So when the jars it resembles the Jesus Christ. और जब हम देखते हैं कि वो जो खाली मटके हैं वो यीशु मसीह के बारे में बताते हैं। When the tasteless water is come inside the stone made, the jar made by the stone Jesus, it started giving the taste. और जब वो बिना टेस्ट का जब पानी उस पत्थर के मटके के अंदर आता है वो अचानक ही दाखरस में बदल जाता है और उसका टेस्ट भी बदल जाता है। So this same thing you are reading in John chapter 15. और यही बात हम यूहन्ना 15 में भी पढ़ते हैं। So Jesus Christ, he is telling the verse 1 onwards, I am the true wine. और यहाँ पे हम यूहन्ना 15:1 में देखते हैं, यहाँ पे यीशु कहता है कि मैं ही वो दाखरस हूँ। So without me you
can't do anything. मेरे बिना आप लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। So if you are connected with Jesus deeply, अगर आप यीशु के साथ गहरे से जुड़े हैं, so you will yield more fruits. तो आप बहुत आयत के फल लेके आएंगे। The 6 jars empty. जो खाली जो मटके थे, So when the water is poured out inside, और जब वो पानी उनके अंदर भरा गया, the stone, the rock of ages, made that water into the sweet wine. और जो वो पत्थर था जो सदा से था, उस पत्थर के कारण वो मीठे दाखरस में बदल गए। If you in Christ, अगर आप यीशु में हैं, you are a new creation. आप एक नई सृष्टि हैं। The old things will pass away. आपकी पुरानी बातें बीत गई हैं। 2 Corinthians 5:17. दूसरा कुरिन्थियों उसका 5:17 The Bible says, बाइबल कहती है, if anyone is in Christ, अगर कोई भी यीशु में है, the water was a normal when the water was in outside. अगर जो पानी है वो पानी ही रहता है जब वो बाहर होता है। When the water come inside the jar, और जब उस पानी को उस मटके में डाला जाता है made by the stone, जो उस पत्थर से बना हुआ it है, exactly resembles Jesus Christ. वो यीशु को दर्शाता है इसमें। Once the water came inside the jar, the Christ, जब वो पानी यीशु के अंदर जो मटके के रूप में है आता है, it's became a sweet wine. और वो एक मीठे दाखरस में बदल जाता है। So we are, whenever we are come closely 100% in Jesus, और जब हम यीशु के पास आ जाते हैं और पूरी तरह से उसी में ही रहते हैं, so we can yield more fruits. और तभी हम बहुतायत के फलों को लेके आते हैं, So we can be more sweet wine. और हम एक मीठे दाखरस में बदल जाते हैं। Our family life will be full of joy, और आपका जो परिवार का जीवन है पूरे आनंद से भर जाता है, full of peace. पूरे ही शांति से भर जाता So है। if you are saying I am empty now, अगर आप ऐसा कहते हैं, जो लोग यहाँ पे बैठे हैं और ऑनलाइन देख रहे हैं कि हाँ आज मैं खाली हूँ, there is a lots of problem in my life. मेरे जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं। So if you are saying and allowing, inviting Jesus today, अगर आप ऐसा कहते हैं और होने देते हैं कि यीशु आपके जीवन में आए, only think from your heart. पर आपके दिल से, If you are allowing, inviting Jesus in your life, अगर आप यीशु को अपने जीवन में निमंत्रण देते हैं, the emptiness will go. जो आपका खालीपन है वो चला All the जाएगा, pride will go. हर घमंड चला जाएगा, All the anger will हर go. गुस्सा चला जाएगा। Your family will be like a heavenly family. जो आपका परिवार वो ऐसा परिवार होगा जैसे स्वर्ग से उतरे हो लोग, The jar was empty. क्योंकि वो मटका खाली था। So Jesus came and the miracle started happen. और यीशु वहां पे आया और चमत्कार होने लगे। So today in your life the Holy Spirit want to fill you. और आज आपके जीवन में पवित्र आत्मा आपको उसी तरह से भर देना चाहता है। John chapter 2 verse 10. यूहन्ना 2 उसका 10 कहता है, So what happened? The wine made by the Lord Jesus Christ, so that was a great tasty. और क्या इसमें बताता है यूहन्ना 2:10 में कि जो दाखरस यीशु मसीह के द्वारा बनाया गया था वो बहुत ही उसका टेस्ट अच्छा था। Everybody started appreciated. और हर कोई जब उन्होंने पिया तो उसकी तारीफ करने लगे। Again the great joy came on the wedding. और फिर से वो खुशी वो आनंद उस शादी में भर गया। Romans 14:17. रोमियो 4:17 The Bible says, बाइबल कहती है, the Holy Spirit is the joy unspeakable. पवित्र आत्मा एक ऐसा आनंद है जिसको हम बयान नहीं कर सकते। Are you feeling loneliness in your life? क्या आप अपने जीवन में अकेलेपन को महसूस कर रहे You हैं? are feeling some kind of the unwanted anxiety and depression. क्या आपके जीवन में बिना बात की ऐसी चिंता है या आप डिप्रेस हैं? So today allow the Holy Spirit. और होने दे कि पवित्र आत्मा को आने He दे। is going to come and fill you today. आज आपके दिन में नया दिन है जीवन में, वो आज आपको भर देगा। Haggai 2:9. हगाई उसका 2:9 The Bible says, बाइबल कहती है, the later glory is going to be so great, says the Lord. जो बाद में जो महिमा परमेश्वर की आने वाली है उस वो बहुत आयत की है। The later wine became the supreme one. जो बाद में जो दाखरस बनाया गया था वो सबसे ऊंचा ठहराया गया। Today if you allow Jesus in your life, अगर आज आप यीशु को आने देते हैं if अपने you allow जीवन में, freely the Holy Spirit, you come and fill my entire body now. अगर आप होने देते हैं पवित्र आत्मा को आने देते हैं, बोलते हैं कि भर दे मुझे ऊपर से नीचे तक, The later glory is going to be so great in your life. तो वो बाद वाली महिमा आज आपके जीवन में बहुत आयत से हो जाएगी। All the time try to be
in Jesus. हमेशा ये कोशिश करें कि आप यीशु में रहें। So several times in our thoughts, in our mind, we can't allow Jesus inside. और बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने दिल और दिमाग में यीशु को नहीं आने देते। So today you check up what things are stopping you for Jesus to go inside your heart. और आज आप इन बातों को देखें, जांचें कि वो कौन सी बातें हैं जिनको मैं सोचता रहता हूँ या उन पे चिंता करता रहता हूँ और यीशु को अपने अंदर नहीं आने देता। So what are the things are stopping you your blessing? ऐसी कौन सी बातें हैं जो मेरी आशीषों को रोकती हैं? So today come inside Jesus. और आज आप यीशु के अंदर आ जाइए। 1 Corinthians 6:17 the Bible says. पहला कुरिन्थियन उसका 6:17 बाइबल कहती है, Whoever is united with the Lord is one with him in spirit. जो कोई परमेश्वर के साथ जुड़ा है वो उसकी आत्मा में एक हो गया है। So the wedding at Cana was a blessed wedding. They connected themselves with Jesus. और इस काना की जो शादी को हम देखते हैं, सोई नहीं जो लोग यहाँ पे बैठे हैं, आप लोगों के जीवन के लिए बात बताई जा रही है। जो लोग शादी में आए थे, आप भी यहाँ पे बुलाए गए हैं इसलिए कि आप उस दाखरस से भर जाएं, ताकि आप उस आनंद को मना सके जो परमेश्वर ने आपके लिए ठहराया है। So today connect yourself with the Lord Jesus. और आज अपने आप को आप यीशु से जोड़ लीजिए। Tie yourself with Jesus. बांध लीजिए अपने आप को यीशु के साथ। If you connect with the true wine, अगर आप उस सच्चे दाखरस से जुड़ जाएंगे so you can yield more fruit. और आप बहुतायत के फलों को लेके आएंगे। If you can't connect with Jesus, अगर आप यीशु से नहीं जुड़ पाए, you can't do anything. आप कुछ नहीं कर पाएंगे। You can't do anything. आप कुछ नहीं कर पाएंगे। But you have to be a fruit yielding tree. आपको एक ऐसा पेड़ बनना है जिसमें फल लगे। You can't give the fruit. आप फल नहीं तब तक पाएंगे The gardener, Jesus, will not be happy. क्योंकि जब तक परमेश्वर आपसे खुश नहीं होगा। So that is clearly written in John chapter 15, 1-7. यूहन्ना की किताब 15 उसमें 1 से 17 में ये साफ साफ लिखा है। So the true wine is calling you today. वो जो एक सच्ची जो दाखरस है आप लोगों को पुकार रहा है। Come to me. मेरे पास आ जाओ। All you have great problem in disturbance. जो कोई लोगों को बहुत सारी परेशानियां हैं अपने जीवनों में, Come to me. मेरे पास आ जाओ। Come to me. मेरे पास आ जाओ। Matthew 11:28. मत्ती उसका 11 उसका 28। Come to me, I want to give you rest. परमेश्वर कहता है कि मेरे पास आ जाओ ताकि मैं तुम्हें अपनी शांति दे सकूं। Come and unite yourself with me. आ जाओ और अपने आप को जोड़ लो यीशु के I साथ। want to make you one. वो आपको अपने साथ एक कर देना चाहता है। Connect yourself with Jesus. उसको अपने साथ, यीशु को अपने साथ जोड़ लीजिए। Connect your marriage life with Jesus. अपनी शादी को यीशु के साथ जोड़ The लीजिए। wedding at Cana connected themselves with Jesus. जो काना की जो शादी थी, उन्होंने उस कमी में, उस घटी में अपने आप को यीशु से जोड़ लिया था। That's why they received the great blessings. और इसी करके उन्हें उस बहुत आयत की आशीष को The देखा। empty jars are filled with the waters. और वो खाली मटके भर गए थे। The waters became the sweet wine. और वो पानी एक मीठे दाखरस में बदल John गया था। 7:38 the Bible says. यूहन्ना 17 उसका 38 कहता है, The rivers of the living water will flow from your heart. आपके दिलों से वो नदियां परमेश्वर के रूप में बह निकलेंगी। If you are connected with Jesus, पर ये तभी होगा जब आप यीशु से जुड़े हैं। if you believe I am filled with the Holy Spirit, जब आपको यकीन होगा कि हाँ मैं पवित्र आत्मा से भरा हूँ, the rivers of the living water will flow. और आपके अंदर से वो नदियां, जीवन की नदियां बह निकलेंगी। So you will be full of the rivers of the living water. और आप पूरी तरह से उन जीवन की नदियों से भरे होगे। Wherever the river और goes, जहाँ कहीं वो नदी जाएगी, there is a joy. और वहाँ पे आनंद आता जाएगा। Psalm 46, 4 and 5. भजन संहिता 4 उसका 45 कहता है। Psalm 46, 4 and 5. भजन संहिता 46 उसका 4 और 5। There was a river. वहाँ पे एक नदी थी। That river used to flow और- into the city of God. और वो बहती थी परमेश्वर के उस नगर में से। Wherever the river और goes, जहाँ कहीं वो नदी जाती थी, there is a gladness, happiness. और वहाँ पे खुशियाँ और आनंद भर जाता था। Ezekiel 47:9. इज़िकियल उसका 47 उसका 9। Ezekiel 47:9. यहेजकल 47 उसका 9। Wherever the rivers of the living water flows,
जहाँ कहीं वो पानी की नदियां बहती हैं, everything will come back alive. जो कुछ वहाँ पे है वो जीवित हो जाता है। Everything will come back हर alive. कोई चीज वहाँ पे जीवित हो जाती है। Jesus Christ is the resurrection and the life. यीशु मसीह ही वो जी उठने की सामर्थ है और वो जीवन है। If you allow the resurrection power of Jesus Christ in your life today, अगर आज आप होने देंगे कि यीशु की वो जी उठने की सामर्थ आपके जीवन में काम करे, the Lord will bless your home. परमेश्वर आपके घर को आशीष You देगा। will be a blessing. आप एक आशीष का कारण Then the ठहरेंगे blessing will flows from you to और others. वो आशीषें आप में से बह के दूसरों के पास जाएंगी The rivers of the living water is going to be flow from your life. और वो ये नदियाँ, परमेश्वर की वो नदियाँ, आशीष की नदियाँ आपके जीवनों से होके बहेंगी। How the water became the sweet wine. जैसे कि वो पानी एक मीठे दाखरस में बदल गया। You may say my life is having lot of bitterness today. आप कह सकते हैं कि हाँ, परमेश्वर मेरे जीवन में बहुत सारी कड़वाहट है, Lots of problems are inside my heart. बहुत सारी परेशानियां मेरे दिल के अंदर There is हैं। no joy in my कोई life. भी आनंद इस समय में मेरे जीवन में All नहीं the है। time I'm feeling the loneliness and the emptiness in my हर heart. समय मुझे अपने आप में अकेलापन और खालीपन दिखाई देता है। Allow the rivers of the living water inside your life today. मांगे अपना मुंह खोल के कि होने दे परमेश्वर, वो जीवन वाली नदियों से मुझे भर दे The आज। 6 jars are filled with the rivers of the living वो water. 6 खाली मटके उन जीवन की नदियों से भर दिए गए थे। The rivers of the living water will make your life full of joy, peace, वो happiness. जीवन देने वाली नदियां हैं, आपको वो आनंद और शांति से आपके जीवन को भर देंगी। Wherever the rivers flow, जहाँ कहीं वो नदी जाएगी, there is a life. Everything will come to life. वहाँ जीवन आता चला जाएगा। On the उस cross, क्रूस के ऊपर Jesus Christ, He lifted up. उसने अपने आप को ऊंचे से उठा लिया। So from the broken body of Jesus Christ, the rivers, the water and the blood is coming out. उसके टूटे हुए शरीर से वो जीवन की नदियां और उसका खून निकल रहा था। If you receive this water and the blood in your life today, अगर आज आपने उस पानी को और उस लहू को अपने जीवन में ले लिया है, all the bitterness will become a sweet wine like a blessing. आपके जीवन की हर कड़वाहट उस मीठे दाखरस में बदल So जाएगी। receive the Holy Spirit now. मांग ले परमेश्वर से, उस पवित्र आत्मा से मुझे भर दे। Don't ignore the Holy Spirit in your life. पवित्र आत्मा को अनजान ना समझें। Today allow the Holy Spirit. मांगे मुंह खोल के, परमेश्वर मुझे भर दे अपनी He आत्मा is the से। rivers of the living भर water. दे मुझे उस जीवन की नदियों से। He want to make your life as a sweet wine of blessing. परमेश्वर चाहता है कि आपके जीवनों में वो मीठे दाखरस के जैसे हो जाएं। Invite Jesus today. बोले यीशु आजा मेरे जीवन में। Everybody, you close your eyes right हर now. कोई इस समय में अपनी आंखों को बंद कर ले, Everybody, you open your heart to Jesus अपने now. दिलों को खोल ले यीशु के लिए। Everyone, you open your mouth and ask the help of Jesus हर today. कोई जो यहाँ पे बैठा है, जो ऑनलाइन भी देख रहा है, अपने मुंह को खोल के मांगे, परमेश्वर मुझे तेरी मदद की जरूरत है। Jesus, I need you, Lord. यीशु मसीह मुझे तेरी मदद की जरूरत है। Jesus, you come and fill me. यीशु तू आजा और मुझे भर दे। Everyone cry right मांगे now. रो रो के परमेश्वर यीशु से। Now the Holy Spirit is coming. यीशु मसीह की पवित्र आत्मा उतर रही है। The Holy Spirit is coming. पवित्र आत्मा उतर रही है। The Holy Spirit is filling पवित्र आत्मा आपको you. भर रही है। Filling भर रही you. है। Everyone receive हर कोई उस Jesus. यीशु को ले लीजिए। He can only give you the life in your और life. वही आपके जीवन में जीवन को दे सकता है। He want to give you the new life. वो आपको नया जीवन देना चाहता Why you है। are living with a sorrowful क्यों अभी life? तक आप वो परेशानी में जीते हैं? Why there is no peace in your क्यों अभी family? तक आपके जीवनों में शांति नहीं है? Today allow होने Jesus. दे, यीशु आ जाए। Let him come and fill वो आके you. आपको भर दे। Jesus had the anointing of the Holy Spirit without measure. यीशु वो उस अनॉइंटिंग, उस अभिषेक को लेके चलता है जिसकी कोई तुलना नहीं है। Jesus had the Holy Spirit overflow. यीशु मसीह उस बहुतायत की अनॉइंटिंग को उस पवित्र आत्मा के फ्लो से भरता है। Now give your empty heart, your empty jar to अपने Jesus. खाली दिलों को, उन खाली मटकों को यीशु के आगे दे दीजिए। He is the full of वो blessing. पूरी ही आशीषों से भरा है। He want to fill you वो आपको down. भर देना चाहता है। If you ask anything in the name of वो Jesus, कहता है कुछ भी मेरे नाम से मांगोगे, it shall be given to वो you. यीशु के नाम से तुम्हें दिया जाएगा। Everyone, you ask the Holy Spirit हर now. कोई इस समय पवित्र आत्मा को मांगे। Everyone ask the Holy Spirit in your हर कोई इस life. समय में पवित्र आत्मा को अपने जीवनों में मांगे।
Now the heaven is opening. हाँ, स्वर्ग खुल रहा है, मुंह The खोल के glory of the मांगते Lord जाएं। is coming and filling स्वर्ग से you. पवित्र आत्मा उतर रही है और आपको Receive भर the रही है। Holy ले लीजिए Spirit. पवित्र आत्मा को, Receive भर the जाएं Holy पवित्र आत्मा से, Spirit. भर जाएं। He is filling वो आपको you. भर रहा He है, is filling you. वो आपको भर रहा है, He is filling your heart वो right आपके दिलों को now. भर रहा है। All the evil spirits are leaving इस समय now. दुष्ट आत्माएं छोड़ के जा रही The हैं। Holy Spirit is rebuking every evil spirit disturbing the family should leave now in वो Jesus' दुष्ट की name. आत्माओं को यीशु मसीह के नाम से हम डांटते हैं, निकल जाए यीशु मसीह के नाम से उन परिवारों के अंदर से। The deliverance is happening. छुटकारा हो रहा The है, deliverance is happening. छुटकारा हो रहा है। Jesus is filling यीशु आपको you. भर रहा है, Jesus is filling यीशु आपको you. भर रहा है। All the emptiness are leaving. आपके अंदर की खालीपन जा रहा है, All the lackness are leaving. कमियां जा रही हैं। The joy is going to be come back in your वो आनंद life. आपके जीवन में दोबारा से आ रहा The है। Lord is restoring your marriage life today. परमेश्वर आपकी शादियों को दोबारा से बचा रहा The है। Lord is restoring your family life परमेश्वर today. आपके परिवारों को बचा रहा है। Be filled with the Holy Spirit भर जाए now. पवित्र आत्मा से, मुंह खोल के Be मांगते filled with the जाएं। Holy Spirit मुंह खोल के now. बोले, परमेश्वर मुझे भर दे The अपनी Holy आत्मा Spirit से। is वो भर रहा filling. है आत्मा से, Filling. वो आपको भर रहा है। भर Filling. जाओ पवित्र आत्मा से। Receive the fire anointing होने दे now. परमेश्वर की आग आप पे उतरे। Heavenly होने दे fire. वो heavenly fire उतरे। Heavenly fire is Fire, filling fire उतरे, you. fire, more fire, Lord। Everyone filled with the fire हर कोई anointing. उस फायर के अभिषेक से भर जाए। The worldly disturbance will not touch you संसार anymore. की परेशानी आपको छू ना सकेंगी। The evil spirit can't come nearby your home वो anymore. शैतानी आत्माएं आपके घर के पास ना आ सकेंगी, Because the Holy Spirit is in क्योंकि you. पवित्र आत्मा आपके अंदर में है। The Holy Spirit is in पवित्र you. आत्मा आपके अंदर में है। He is filling वो आपको you. भर रहा है। He is filling वो आपको भर you. रहा है। Still some मुंह of खोल you के are मारते जाए, मुंह खोल के मांगते जाए परमेश्वर से। still some of you are not yet opened the door for your heart to Jesus. अभी भी कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अपने दिल के दरवाजे को यीशु के लिए नहीं खोला है। Now you open your door. अपने दिल के दरवाजे को खोल दीजिए। Without you open the door of your heart. जब तक आप दिल के दरवाजे को नहीं खोलेंगे, Jesus can't send the Holy Spirit upon वो you. पवित्र आत्मा को आपके जीवन में नहीं भेज सकता है। Right now you humble yourself and open your heart for अपने Jesus. आप को दीन कर ले और अपने दिल को खोल दे यीशु के लिए। The Lord is He is all the time against the pride people. परमेश्वर उन लोगों के खिलाफ होता है जो घमंड करते हैं, But He used to give the grace to the humble जो heart. दीन होते हैं परमेश्वर उन पे अनुग्रह करता है। You can humble once again your heart before the presence of the Lord right एक now. बार फिर से अपने आप को दीन कर ले परमेश्वर की उस उपस्थिति के Now आगे। the Holy Spirit is ready to fill फिर you. से पवित्र आत्मा तैयार है The आपको Holy भरने Spirit के is ready लिए। to bless वो you. चाहता है कि आप आशीष पाए। Today is the day of your miracle. आज आपका दिन है उस चमत्कार को लेने का। How the emptiness was changed into miracle in the wedding at Cana. आपका जीवन उसी खालीपन के हिसाब से बदलने जा रहा है जैसे काना की उस शादी के अंदर हुआ था। The Lord wanted to perform in your miracles in your life परमेश्वर today. यीशु मसीह चाहता है कि आपके जीवनों में वो चमत्कारों को करे। You allow the Holy Spirit today अपना now. मुंह खोल के मांगते रहे, होने दे पवित्र आत्मा, ये मेरे जीवन में होने दे। Holy Spirit, ओ पवित्र आत्मा, fill me, भर दे Lord. मुझे पवित्र Fill आत्मा, me, मुझे Lord. भर दे अपनी आत्मा Fill से, me, भर दे Lord. मुझे अपनी आत्मा Now the से। miracles are happening. होने दे चमत्कारों को। Now the miracles are happening. चमत्कार हो रहे हैं। How many of you are going through the debts problem? कितने लोग इस समय में कर्जे में हैं, You are going through the debts problem. जो कर्जों की मुश्किलों में हैं, Loan problem. जिनके पास लोन The Lord है। is going to do the miracles in your life. परमेश्वर उनके जीवनों में चमत्कार करने जा रहा The है, same miracle happened in the wedding at Cana. जैसा कि काना की उस शादी में हुआ था। It is going to be happen in your home आज today. आप में से हर किसी के घरों में ऐसे ही चमत्कार होने The जा रहे blessings of हैं। God are coming. परमेश्वर की वो आशीषें उतर रही है। The blessings of Jesus is यीशु coming. मसीह की वो आशीषें आपके ऊपर उतर रही है। How many of you are waiting for your marriage life partner? कितने लोग इस समय में अपने जीवन में सही लाइफ पार्टनर के लिए इंतजार कर रहे हैं। How the Lord blessed the wedding at Cana, in the same way Lord is going to send the right life partner. Your wedding will be happen as a king's wedding. जैसा कि काना की शादी में
यीशु ने उस चमत्कार को किया, वैसे ही आपके जीवन में सही लाइफ पार्टनर परमेश्वर आपके जीवन में भेजने जा रहा है। Receive your miracles अपने now. चमत्कारों को पकड़ लीजिए। All the sicknesses are leaving now. जितनी भी बीमारियां हैं यीशु के नाम से जा रही How हैं। many of you are going through the sickness in your जितने लोग life? इस समय में बीमारियों से जा रहे हैं, The Holy Spirit is rebuking every sickness should leave यीशु now. पवित्र आत्मा उन बीमारियों को डांटती है, निकल जाए। Every spirit of sickness, get हर out. बीमारी की दुष्ट आत्मा निकल जाए। All the bondages of the devil shall broken हर now. बंधन यीशु के नाम में टूट जाए। Every bondages be broken in Jesus' मांगे मुंह name. खोल के यीशु के नाम से ये बंधन जो शैतानी है मेरे जीवन से टूट जाए। All the work of the devil, the evil spirits should destroyed by the blood of Jesus now. शैतान के हर वो कामों को, हर बंधनों को हम नाश करते हैं यीशु के लहू से। The blood of Jesus Christ is cleansing every one of you यीशु का लहू now. आप लोगों को धो के साफ कर रहा है। Receive the grace from the blood of Jesus right now. परमेश्वर के लहू से उस अनुग्रह को ले लीजिए। The miracles are happening. चमत्कार हो रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। All of you are here. You are healed from your sickness जो today. लोग इस समय में यहाँ पे बैठे हैं, परमेश्वर ने उन्हें चंगाइयाँ दी हैं। Believe and receive your healing. हर कोई अपनी चंगाई को ले लीजिए। All the spirit of depression and anxieties are leaving now. निराशा की आत्मा आप लोगों को छोड़ के जा रही है। All the bad dreams through bringing through the evil spirits are leaving जो now. डरावने और बुरे सपने आपको दुष्ट आत्माएं देती हैं, परमेश्वर आपको उनसे आजादी दे रहा है। Be delivered right आजाद हो now. जाओ। Be delivered right आजाद हो now. जाओ। The Holy Spirit is performing the miracle in your life इस समय now. में पवित्र आत्मा आपके जीवनों में काम कर रहा है। How many of you are going through problem in your job? कितने लोग इस समय में अपने कामों में परेशान The हैं? Holy Spirit is rebuking all the disturbing spirit is controlling you inside your job is leaving now. यीशु की पवित्र आत्मा उन दुष्ट आत्माओं को डांटती है आपके काम के ऊपर से, जो आपके काम में अड़चने डालता है। यीशु के नाम से दूर हो जाए। All the work spot problem in your job is going away, leaving. जो भी आपके काम में दिक्कतें परेशानियां दुष्ट आत्माओं के रूप में होती है, वो चली जा रही है यीशु के नाम में। How many of you are waiting for your good job? कितने लोग इस समय में इंतजार में हैं अच्छे कामों के लिए? Today the Lord is going to perform the miracle. You are going to get your good job soon. और आप परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करने जा रहा है। बहुत ही जल्द आप वो अच्छी उस नौकरी के साथ आएंगे। Don't give up your prayer अपनी life. प्रार्थना के समय को ना छोड़ देना। Increase your prayer time. अपनी प्रार्थना के समय को बढ़ा लेना। The Lord is blessing the people, those who want to grow in their spiritual life right परमेश्वर इस now. समय में खास तौर से उन लोगों को आशीष दे रहा है जो अपनी प्रार्थना के जीवन में, आत्मा के जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। You are going to pray more time in और prayer. आप अपना ज्यादा समय प्रार्थना कर पाएंगे। You are going to read the Bible और more. आप वचनों को और पढ़ पाएंगे। Every day you will receive the new anointing. हर रोज परमेश्वर आपको नए अभिषेक से भरने जा रहा है। Many families don't have your family prayer कई time. परिवारों में इस समय में भी पारिवारिक प्रार्थना नहीं है। The Holy Spirit wants to start again that family prayer in your और life. पवित्र आत्मा उन लोगों से ये कह रहा है, फिर से परिवार के रूप में जुड़ के प्रार्थना करना शुरू करिए। Restart your family फिर prayer. से अपने परिवार को इकट्ठा करके बैठ के प्रार्थना करना शुरू करिए। You will enjoy the abundance blessings of God in your family. और आप फिर वो बहुतायत की आशीषों को अपने परिवार को भरता हुआ देखेंगे। Thank you, Lord, for your miracles. धन्यवाद परमेश्वर तेरे चमत्कारों के We लिए। give all the glory. हम तुझे ही महिमा देते हैं सारी। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं। Amen. आमीन।